हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक और सुनहरी शानदार सुबह में। एवरेस्ट बेस कैंप सफ़र का डे 6 कह सकते हैं आप इसको। वैसे कल डे 6 था, जो मेरा रेस्ट डे था जून बेसी में। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि डे 5 को लामजुरा ला पास क्रॉस करके मैं इस गांव में पहुँचा और ये जगह अच्छी लगी। 5 दिन हो गए थे चलते हुए, तो 2 वीडियो एडिट करने पड़े थे, नहाना था, कपड़े धोने थे, थोड़ा ट्रिमिंग करनी थी, तो मैंने सोचा एक दिन का ब्रेक लिया जाए, बढ़िया रहेगा। तो वही किया। और 5वें दिन शाम को मैं जहाँ आके रुका था, अगले दिन सुबह वो बोले कि हमारा आज बुक है ऑलरेडी और आप कोई और ढूंढ लीजिए। मैंने कहा चलो भाई कोई ना। तो मैंने उसके पास में ही एक और सागर माथा गेस्ट हाउस नाम है इसका, बड़ी खूबसूरत और प्यारी जगह। ये पीछे का इनका जो देख रहे हैं आप एरिया, नहाया, बढ़िया कपड़े वपड़े धो के इधर सुखा दिए। अच्छी धूप खिली थी, सूख गए। और अब चाय व नाश्ता करते हैं और यहाँ से रवानगी करते हैं आगे के लिए। मेरे ख्याल आज का सफ़र अपना इस तरफ देवदार के जंगलों के बीचों बीच होके जाएगा। बड़ा सुहाना मौसम है आज। ये ठिकाना जहाँ पर कल मैं आके रुका था, ये सर का सागर माथा लॉज, बड़ी शांत सुंदर और प्यारी जगह। पीछे की तरफ आप बैठिए, धूप सेकिए, रेस्ट कीजिए। इधर इनकी सब्जियां लगी है, सरसों का भी छोटा सा एक क्यारी है। ये पुराना मकान है मेरे ख्याल कोई। और पीछे की तरफ एक पीक दिख रही है और इस तरफ ये फॉरेस्ट है पूरा। इस तरफ से आज जाना है हमें, अंदर ही अंदर। जून बेसी सर का चेहरा याद रखिए। और ये सर का लॉज है, सागर माथा लॉज। पीछे इतना बढ़िया घास का मैदान है। आप बैठिए, धूप सेकिए, कपड़े सुखाइए, आराम कीजिए और खाना वाना सब इंतज़ाम अंदर होता है। और पीछे आराम से पहाड़ों के नज़ारे, सरसों के खेत। इधर दिस इज वीट राइट? Numbur. दैट इज नुम्बुर पीक। Numbur. Yes. नो, द क्रॉप, द ग्रीन वन। This one barley. बार्ले? Barley. Okay, I was thinking it's wheat Wheat also, but upside. on This the is other wheat. side. Oh, that is wheat. That is wheat. Okay. Wheat. You see the man up there? Hmm? Just behind the Numbur Himal, Hmm? there is a people there doing a meditations. Okay. This side also. This side you see, this back side there is a monastery. Hmm? There's also people are this time doing meditation. Doing meditation. It's a Okay. place of meditation place also. Okay. So your area is surrounded by the meditative Yeah. points. Yes. Point. Good, good. But it's beautiful. When I crossed Lamjura La, Yeah. the totally like the entire landscape changed. Yes. The flowers Yeah. in the forest, that was so mesmerizing. When you enter the Jinbeshi. Yes. it's different. This valley. So those I think rhododendron flowers, Different. very like many colors, Many white, light pink, White red, also, you can see. and then these pine forest. Yeah. Pine is a pine. Yeah, Pine they I could only see after the Lamjurala. Yeah. Before that there were some No, other trees, No, not trees. but this is my favorite. Is log walk is 3,000 Yes. height. Jinbeshi. So the climate here remains like relatively cold throughout the year. Yeah, it's very nice and quiet. Perfect. Everything is perfect. We are staying with the nature. Yes. We are staying. We have a Himalaya. We have hills. This part we have a lot of trees. And just down there is a river flow. Yeah. Everything is here natural. It's like a dream place. Grand place. It's an organic place. Yes, yes. When you stay, when I go to Kathmandu, Hmm? very difficult to stay one weeks also. Yeah. Kathmandu is so big and crowded. Big and crowd and Noise. even in I like to stay 1 month in Kathmandu, but It very is difficult to stay there. 1 weeks also. Yeah. We see once you get used Yes. to these kind of places, Yeah. especially in the mountains with so much peace and
clean air, clear environment all around you, Yeah. then it gets very difficult to survive in a crowded and noisy place, for even for a day or a week. Yes, yes. That is why. Yeah. ये जी फर्स्ट फ्लोर पे इनके कमरे और इधर अपना कॉर्नर में चेक 500 रुपये किराया इस कमरे का, 2 बंदे सो सकते हैं। इधर खिड़की और एक इस तरफ खिड़की से ये नज़ारा। बढ़ते हैं आगे अपने सफ़र पे। डे 6 ऑफ एवरेस्ट बेस कैंप। यहाँ से अभी ये सीढ़ियाँ उतर के नीचे और नदी के ऊपर से ब्रिज पार करके फिर उस जंगल में गुम जाएंगे हम। अब बात कर लेते हैं खर्चे की। 5वें दिन मैं पहुंचा, उस गेस्ट हाउस में रुका था, तो वहाँ पर भी रूम 500 का था और शाम का मैंने खाना खाया था, 2 रोटी और थोड़ी सब्जी और एक सुबह चाय पी थी। उन्होंने बिल बना दिया 1600 रुपये। 1600 रुपये बाद में मैंने पूछा तो बोले 300 रुपये वाईफाई। मैंने कहा ये बात याद तो आप लिखी होती, मोस्टली होटल में शावर वगैरह पानी गर्म ठंडे का वो लिखा होता है उनका, वाईफाई का भी। उन्होंने वहाँ पर इतना लिखा हुआ था वाईफाई अवेलेबल। तो मैं कहा चलो अब तो देना पड़ेगा, या तो आप वाईफाई मांगो उस टाइम बता दो कि भाई पेड है, पर क्या कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके बढ़िया ट्रिम व्रिम किया, नहाया गर्म पानी से, सब कुछ छूका। और यहाँ मैंने डिनर नहीं किया था, डिनर इस ढाबे में किया था, वो बल्कि मेरे को सस्ता पड़ा था, सारा ही 300 रुपये का। और लंच किया था और ब्रेकफास्ट किया आज पैनकेक वाला। यहाँ बैठा बिल 2250 रुपये। वो भी अब जब सुबह बिल देखा तो बोले कि 400 रुपये नहाने का जो गर्म पानी वाला ऐड कर दिया। पर चलो ये चीज़ें तो अब आगे जैसे जैसे जाएंगे आती रहेंगी, और थोड़ा पूछताछ के ही फिर हम रुकेंगे। पर यहाँ पर वाईफाई का इन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया था, चलो ये भी ठीक है। तो 2 दिन का यहाँ का बैठा है 2200, 1600, 3800, 3800 और 38 और भाई 500 रुपये परसों वहाँ पे मैं रास्ते में वो टोस्ट वगैरह चाय वाय पिया था वो। तो डे 5 और डे 6 4300 2 दिनों का। ये है रिवर साइड लॉज एंड कैफ़े। ये भी अच्छी जगह है भाई, नदी किनारे आप नीचे जनाब कपड़े धो रहे हैं और सामने हमारे ये ब्रिज है, छोटा सा पैदल यात्रियों के लिए है खाली, कोई गाड़ी बाइक जैसा सिस्टम इसके ऊपर से नहीं जा सकता। उस तरफ रास्ता है गाड़ियों का। ऊपर से चॉपर और इन प्लेन्स की आवाज़ आने लग गई है। हाँ, ऐसे घने जंगल हो ना, ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज, कहीं चीड़ कहीं देवदार, पूरे रास्ते बढ़िया छांव रहती है। कहीं कहीं पेड़ों के बीच में से छन छन कर धूप भी आती रहती है। हेलो। ये बेचारा ऊपर जो हेलीकॉप्टर वगैरह की आवाज़ सुन सुन के वो करता है कि ये उड़ता हुआ क्या जा रहा है, इतना शोर करता हुआ। ओह माय गॉड, आई जस्ट लव दिस यार। ये होती है असली मज़े वाली ट्रैकिंग। जो रूट है, कच्ची कच्ची पगडंडी हो, ठंडक देने वाला मौसम, ऊंचे दरख्त
घना जंगल, चहचहाते पंछियों की आवाज़, बीच बीच में नदी नालों के बहने का साउंड। अमेजिंग। मेरे को कितने दिन हो गए जो गाड़ी वगैरह का जो धुआं है या किसी भी तरीके का जो एक पॉल्यूटेड काइंड ऑफ एयर होती है, वो स्मेल भी महसूस नहीं की। इतना क्लीन, इतना साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है ना। वन मोर ड्रीम हाउस। यहाँ देखो ऊपर एक मकान बना है और ये भी रिहायशी एरिया लग रहा है। इधर इनकी आई थिंक बगीचे की ज़मीन है, लक्कड़ की फेंसिंग की हुई है और चारों तरफ बाकी फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट, ऊपर भी इधर भी, और पास से ये छोटी स्ट्रीम। अब जून बेसी दिखना बंद हो गया, इस पहाड़ी के पीछे है और वो है लामजुरा ला पास, जिधर से मैं आया था क्रॉस करके। और ये नीचे पूरी वैली और ये अपना आगे का रास्ता। खूबसूरत ये नज़ारे याद आएंगे, चाह के भी हम इन्हें ना भूल पाएंगे। है ना नज़ारे कमाल के। वाह, आज भी आ गए वो फूलों वाले पौधे। ऐसे बीच बीच में बढ़िया है, पर भाई उस दिन तो कमाल ही था। वो तो लामजुरा ला पास के बाद का जो जंगल आया था ना, वाह। यहाँ पे एक दो मकान तो दिख रहे हैं, पर गारंटी नहीं है कि कुछ खुला होगा। एवरेस्ट व्यू शेरपा लॉज लॉक, एक इधर है, इस पे भी लॉक है। ओके, दो बंदे बैठे पर यहाँ पर, ओह शायद अपना ही कुछ पानी वानी पी रहे हैं। नहीं, मे भी खुला हो। ये वाला उधर एक नल चल रहा है। इज इट ओपन? इज इट ओपन? नो, ओपन और क्लोज? इज ए शॉप और रेस्टोरेंट? ओके, लेट अस सी। पहले तो ये स्पेस देखो आप, इनका सामने का आंगन कह सकते हैं। ये जनाब ओनर है यहाँ के, हैं? दिखा है? लेफ्ट साइड, ये सामने में लेफ्ट साइड। ओके ओके, वो एवरेस्ट है। थोड़ा से उधर में नीचे जाएगा तो नीचे, थोड़ा से नीचे। चलो वो तो नज़दीक जाके देखेंगे। यहाँ से देखो भाई, वेट वेट सर, अगर वो कुछ पीक्स आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा मौसम ठीक नहीं है क्लियर, ये जितने भी पीक्स हैं। और यहाँ इस कॉर्नर में उधर माउंट एवरेस्ट है कहीं, और ये सारा नज़ारा ठीक इनके यहाँ से दिखाई देता है। कितना शोर करता हुआ जा रहा है यार। मिलेंगे मिलेंगे। ये इनका किचन है। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। चाय होगा? क्या होगा? एक दूध चाय, दूध चाय कड़क वाला। कड़क, रंग कड़क, रंग कड़क आएगा ना,
पत्ती उबाल के बढ़िया, ओके, है ना? अच्छा। मीठा नॉर्मल, लो चीनी डालोगे नहीं? हाँ चीनी डालना नॉर्मल, नॉर्मल। पर पत्ती कड़क थोड़ा। अच्छा। साथ में खाने में कुछ टोस्ट वोस्ट ऐसा? टोस्ट आपके लिए क्या मेनू दूंगा? टोस्ट या बिस्कुट जैसा? नहीं, चाय के साथ में। चपाती? नहीं चपाती तो नहीं, बिस्कुट? हम बिस्कुट खा लेगा। अच्छा। ठीक है। ये जनाब मिले मेरे को ये इसी ट्रेल पर, यहाँ बैठे बैठे बातचीत करते करते, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। सो इन्होंने मुझसे पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम? आई टोल्ड देम दैट आई एम फ्रॉम इंडिया एंड दे सेड दैट वी हैड ए गेस दैट यू आर फ्रॉम इंडिया। और उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो दे सेड कि यू गेस वेयर आर वी फ्रॉम। सो इन दोनों को देख के आप पहले अंदाज़ा लगाइए कि आपको कहाँ से लगते हैं, कितने लोग देखते हैं कि सही अंदाज़ा लगा पाएंगे। मैंने 2-3 अंदाजे लगाए हैं, वो अभी तक गलत गए हैं। आई गेस देम Netherlands, then Belgium, then Finland, and then Ireland. But they said no, none of them. Then when I said that Netherlands, they said you are coming closer. So And it's very difficult because I'm from one country and my daughter is from oh, two countries. she's from another two too. Okay. Yeah. Oh, country for. then it is very from very two countries. very difficult. I would be very happy if I could guess only your country, leave alone our two countries. It's so hard because for me, if I say that, like at one point you look like, okay, maybe you are from Australia, maybe from Canada, maybe from US, maybe from France. So Very close. oh, very close. Almost. Oh, wait, Germany? Yeah. Oh, wow! Great. I got 1 point. And she's from two countries. And So, I'm starter, so wait, Germany is for sure, since your father is from Germany. Yeah. And then, okay, I have to guess maybe the country of your mom. Nearby, Germany? Yeah, nearby. French? Yeah. Oh, well, yeah. Okay, great. Finally, after guessing 7-8 false answers, I could manage to get it right. So they are from Germany and France. Great. So you are doing which this trail? PK Peak. You are coming from PK Peak and then you are going back. Yeah. How was it? How was the trail? Beautiful. Beautiful. And your first time in Nepal or? Yeah. Okay, great. Have you been to India? No. Not yet. Next time. Okay, I invite you to visit India. Oh. You will love it. No matter what you like beaches, we have beaches. You like mountains, you like trekking, you like biking, you like plains, rivers. You will find everything. Everything. And especially if you love food, then it's a paradise for you. But Nepal is lovely. I'm loving it. It's my 5th time. Your first time also? No, 5th. Fifth time? Yes. Oh. Nice, but Yeah. for you, Nepal is nearer than for us. Yeah, it is. It is nearer, but it's more important because I love Nepal. I love mountains. I love Himalayas. Yeah. That's why I keep coming here again and again. You been at Tibet? Not yet. No. Yeah. Maybe in Portugal. Yes, but we have Ladakh, more or less same like Tibet. Yeah, same like Ladakh is beautiful. That is Ladakh. You have been to Ladakh? Yeah. Good. Good. फुरत्यांग इस स्पॉट का नाम है। यहाँ पर ये एक छोटी सी शॉप खुली थी। एक टी ब्रेक लिया थोड़ा सा, वो लोग मिल गए, उनके साथ गपशप लगाई। कमाल की बात देखो आप, वो बंदा मेरे ख्याल में 50 से 60 के बीच की उम्र होगी, 60 के आसपास ही, और उसके साथ उसकी बेटी, वो ट्रैक करने आए हुए हैं। कितना अच्छा है ना कि परसों भी मेरे को एक 16 लोगों का ग्रुप मिला था, वो भी जर्मन थे और वो भी 40s-50s में ही थे, मोस्टली पार्टनर्स या फिर सन डॉटर इस टाइप के। तो कितना बढ़िया रहता है ट्रैकिंग ट्रिप्स, इस तरह आप जाते हो अपने परिवार के साथ, पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ,
रास्ता आगे का भी ये पहाड़ के एज पे चलेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी माउंटेन रेंज का एक परिक्रमा जिसको कहते हैं वो हो रही है, पर पूरी नहीं होगी, या आधी होगी, फिर आगे जाके कहीं नीचे उतरना है। हाय रब्बा। आप कमेंट में एक चीज़ मेरे को ये भी बताइए, जैसे मुझे पहाड़ों में आता हूँ मैं, देवदार बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत सुंदर। जहाँ भी देवदार के जंगल दिखते हैं मेरा जी करता है बस वहीं बैठ जाओ, आप लेट जाओ और जितना हो सके समय बिताओ। तो आपको क्या चीज़ भाती है, या कौन सा ट्री है, पेड़ है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? और पहाड़ों में भी जब आप जाते हैं तो पहाड़ों में क्या चीज़, पहाड़ों में बहुत कुछ है, जैसे कि पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गई, अलग अलग तरीके के जंगल हो गए, घास के बड़े मैदान, मीडोज़ हो गए, और न जाने क्या क्या। तो वो आप बताइए कि आपको क्या पसंद है। ये घर जिनके भी हैं, ये बहुत ही कमाल लोकेशन है। अभी मैं बता रहा था ना कि ये मिस्ट की वजह से हमको नहीं दिखाई दे रही है, अदरवाइज़ सुबह का टाइम अगर यहाँ पर मैं होता तो जस्ट इमेजिन, ये सीढ़ी नुमा खेत है इनके, ये कॉर्नर पर इनका घर है एज पर, और इस तरफ है ना बिल्कुल सामने ये धुएं के ठीक पीछे पीक्स हैं, माउंट एवरेस्ट और उसके आसपास की 7-8 हज़ार मीटर ऊंचाई वाली कई पीक्स सीधा दिखाई देती है इनको। यहाँ भी मेरे को 1-2 घर दिख रहे हैं खुले हुए, बाकी तो ये देखो बिल्कुल ऐसे उजाड़ जैसा लग रहा है। ये तो बिल्कुल ही लॉक एंड अबेंडेंड। ये वाला भी इधर पोली हाउस बना रखे हैं दो, खेती बाड़ी के लिए, सब्जी के लिए खासकर। ओह, कुछ गायें ऊपर चल रही है। इधर एक घर खुला है और ये पतली सी नाली ऊपर से आ रही है, तो इन सब घरों के लिए पानी की सप्लाई इसमें से हो जाती है। यहाँ लगे हैं प्याज, लहसुन, आलू लगे हैं इधर। वाह। पहाड़ों में देखो यार, यहाँ ऐसे ऐसे जो गांव आ रहे हैं ना, इनके बीच में से गुजर जाओ, जो घर पे लॉक लगा इसका मतलब है कि उसमें कोई है ही नहीं, रह ही नहीं रहा है। और जिस पे अगर नहीं है तो लोग इधर उधर भी खेतों में काम कर रहे होते हैं आराम से, जैसे खाली पड़ा है, कोई टेंशन नहीं कि कोई आएगा, चोरी चकारी लूट मारी, नो नथिंग। ये घर भी देखो, अब जगह इन्होंने खाली बस कुंडी लगा रखी है एंड वो अपने अपने काम में व्यस्त है। सब जगह ऐसा हो तो यार दुनिया स्वर्ग ऑटोमेटिक ही बन जाए, पर होता नहीं है ऐसा। आगे यहाँ पे एक जेसीबी दिखी थी यार मेरे को, व्हाट इज गोइंग ऑन। रास्ता बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये ट्रैक का तो जो यहाँ ऊपर से था, ऊपर से वहाँ जाके कट गया है। ये लग रखी है भाई, मुझे लगता है ये वो जो पीछे एक 8-10 घरों की एक बस्ती आई थी, उसके लिए ये एक रास्ता निकाल रहे हैं कच्चा। ओके, यहाँ तक मतलब पहले से आ रखा है रास्ता, पर ये भी कोई ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा, 1-2 साल पुराना होगा। 2 बज गए हैं, भूख भी महसूस नहीं हुई यार। वैसे एक आधा ठिकाना आया था, वो वहाँ पर 11-11:30 बजे वो चाय और बिस्कुट खाया था, और उससे भी कह सकते हैं कि थोड़ा भूख डिले होती है, चाय तो करती है। और अब चलो देखते हैं आगे जाके ही कुछ आएगा ठिकाना तो हल्का फुल्का खाएंगे, पर अब मुझे लग तो नहीं रहा है, हो सकता है शायद वो 2.5 किलोमीटर के आसपास नदी के पार वाली साइड जो है वो ही एक सेटलमेंट है।
पर ये भी है ना, आज का जो सफ़र अब तक रहा है वो ऐसा ज़्यादा मुश्किल वाला नहीं रहा है। एक बार शुरू में जंगल से थोड़ा ऊपर पहाड़ पे चढ़ा था, उसके बाद ना इवन सा ही चल रहा है कि इसके किनारे किनारे पर आप इसका सर्कल लेते जाओ तो एक कंफर्टेबल काइंड ऑफ हाइक रही है, इसलिए भी ज़्यादा ऐसे भूख महसूस नहीं हुई। इसे कहते हैं मस्त लाइफ। जरा आप लेटे हैं, नो भाई चिल कर यार, कमाल है। आया वड्डा शेर। बिना मतलब गड़ पई जांदा है। कुत्ते तो और भी मिले रास्ते में, बताओ वो बताओ कितना बढ़िया आराम से साथ हो लिए। पर ये इसका कसूर नहीं है, ये बंदिश में है। तो जब बंदिश में इंसान रहता है तो वो चीज़ें इंसान के मस्तिष्क पर, मन पर और बहुत सारा प्रभाव छोड़ती हैं नेगेटिव तरीके का। यहाँ एक छोटा ब्रिज है, अभी तो ये भी ताज़ा ही बनाया है। गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो अभी भी पानी के अंदर से ही गुजरती है, इतना ज़्यादा है भी नहीं बहाव। ये जो कोने में आप देख रहे हैं ये आटा पीसने की चक्की है। पहाड़ों के इस तरीके के रिमोट एरियाज़ में आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी जहाँ पर भी इस तरीके की छोटी नाली स्ट्रीम ऊपर से जो आ रही है। तो इसमें उधर से उन्होंने एक छोटी नाली डाइवर्ट कर रखी है, तो जिसमें कि पानी के प्रेशर से इसके अंदर जो चक्की है वो चलती है और आटा पीसते हैं। पूरे रास्ते इस रूट को फॉलो नहीं करना है, ये तो बहुत लंबा पड़ेगा। उधर से घूम घूम के बीच बीच में कहीं पर ये ठीक है इन्होंने किया हुआ साइन बोर्ड, वे टू रिंगमू, और ये है वे टू जीरी जून बेसी। तो अपन को जाना है नीचे की तरफ। हो ट्रैवल करते टाइम एक आध चीज़ होती है कोई जो इत्तेफाक से हो जाती है, पर कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ होती है या कोई इंसान होता है वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते और ऐसे टाइम पे ऐसी जगह पे आपको टकर जाता है। एक ऐसे ही जनाब हैं ये सर हम दोनों को पता नहीं कि हम कितनी बार एक दूसरे से ऐसे मिल चुके हैं रास्ते में। मनाली ओल्ड मनाली शायद आई थिंक जो पुराना ब्रिज था उस ब्रिज के ऊपर हम एक बार मिले। ये इन्होंने यूट्यूब पे देखा था शायद मेरा, उसके बाद वो पीली जैकेट से पहचान लिया इन्होंने। राइट। उसके बाद लास्ट ईयर आई थिंक ले के मार्केट में ऐसे टहलते टहलते मिल गए एक आध बार, और वो याद नहीं आ रहा। अभी आज सुबह से मैं जैसे चला हूँ वो 2 लोग मिले थे, 6 दिन हो गए, 7 दिन कोई नहीं मिला, वो एक ग्रुप मुश्किल से मिला था। और यहाँ मैं ये ब्रिज क्रॉस करके इधर से मुड़ा हूँ मैं, और ये जनाब बैठे। मैं कहा यार ये सच है या ऐसे ही कोई ख्याल आ जाता है कई बार, वो है। तो ये भी देख के पहचान गए कि यार हम फिर मिल गए। ये हैं मुंबई से, है ना? हाँ, रमेश है, मुंबई से। रमेश नाम है इनका, मुंबई से हैं। हाँ। बहुत घूमते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं और मोस्टली ऐसी ही लोकेशंस पे मेरे को मिले हैं। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। अभी बैठ के हम कई देर से गप्पे मार रहे हैं। अभी ये बता रहे हैं कि ये भी ऊपर साइड से जाके आए हैं। पूरा एरिया जिस तरफ मेरे को जाना है, तो वो आप एक बार बताओ कि आप कहाँ किस एरिया में अभी कितने दिन से घूम रहे हैं?
पहली बात तो मैं तो यंग मॉन्क का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अरे नहीं मैं नहीं तो सर। इतना क्लोजली फॉलो करता हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आता है। एक एडवेंचर है बंदे में और वही एडवेंचर मैं भी लेके आना चाहता हूँ, तो वो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि मैं इस बार तो जिरी से गोकियो गया, पूरा गोकियो से रेंजोला पास क्रॉस किया अरे वाह। एंड ऑलमोस्ट एक 25 दिन हो गया मेरा। अभी वापस दोबारा जिरी पहुँच ही रहा हूँ, तो और 3 दिन का ट्रैक बचा है। तो बहुत मज़ा आ गया पूरा ट्रैक में। लॉट ऑफ रोडोडेंड्रॉन ट्रीज देखा, बहुत सारे एनिमल्स भी मेरे को मिला उधर। हिमालयन थार देखने को मिला। देन द माउंटेन्स वर ऑलवेज देयर, दे आर अमेजिंग। ये सब एक पूरा एक कंकॉक्शन था इन टर्म्स ऑफ 21 डेज़ का, 25 डेज़ का। तो और अभी आपको मिला, हाँ वो तो तो है। ये तो है ही। दैट तो- मेक्स द एक्सपीरियंस इवन मोर बेटर। तो जो लोग जैसे पूछते हैं कि ऐसे फॉरेस्ट के अंदर दूर दराज के इलाकों में ट्रैकिंग का क्या कुछ प्लान, कितने दिन ऐसे वैसे, तो ये सर भी सबके लिए हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। 3 हफ्ते से ज़्यादा देखो इनको ऑलरेडी हो गए हैं अकेले। ये इनका बैकपैक है, ये लेके पूरा का पूरा ट्रैक करके आ रहे हैं। तो आपके मन में अगर कोई कभी डर है, डाउट है किसी भी चीज़ को लेके, निकाल दीजिए, बैग उठाइए, अपना हिम्मत रखिए, चलिए आगे से आगे। आपको इस तरीके के और लोग मिलते जाएंगे, उनसे और थोड़ा हौसला मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है सर, बड़ा मज़ा आया। बहुत मजा आ गया मुझे। फिर मिलेंगे हम फिर कहीं ना मिलेंगे कहीं। कोई किधर ना किधर तो इस दुनिया में पक्का। देखो कितना कमाल है ना, सच में 3-4 बार हम मिल चुके हैं ऐसे रैंडमली, और ये वाला तो बिल्कुल टोटली अनएक्सपेक्टेड था। जहाँ नॉर्मली कोई और लोग नहीं मिल रहे, वहाँ पर ये मेरे को मिल जाएंगे। ये तो नहीं था ख्याल में भी। वाह, हियर इज अनदर हैंगिंग ब्रिज। ये है भी थोड़ा लंबा। हैंगिंग ब्रिज पे स्टार्टिंग में कोई बंदा पहली बार आता है ना, उसको थोड़ा सा धड़कन तेज़ होती है जब नीचे देखते हो आप। पर ये वाले काफ़ी मजबूत हैं। पुराने ज़माने में ये लकड़ के बनाते थे, देखो वो भी कई साल चलते थे। ये वाले तो लोहे के हैं और ये तारों के। 700-800 मीटर हो रहे यहाँ से। वो सेटलमेंट जो उधर से दिख रही थी हमको, रिंगमो। ये है रिंगमो। यहाँ पिछले 2 दिन से चीज़ फैक्ट्री आ रही है हर गांव में। तो इस तरफ याक और गायें काफ़ी पालते हैं लोग, फिर उनकी दूध से ये चीज़ बनाते हैं। थोड़ा ऊपर तक गया मैं देखने, पर ज़्यादा ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं। एक होटल और रेस्टोरेंट और था, फिर मुझे ये वाला ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। अभी मैं यहीं से पास से गुज़रा था, सामने लॉन है बढ़िया, पास में खेत है, और इधर ये बिल्डिंग पूरी। चलो देखते हैं। यहाँ भी एक चाय पिए। चाय बहुत कड़क भाई, पूरे रूट पर मेरे ख्याल में सबसे बढ़िया चाय ये भाई ने पिलाई है। अब 3:30 बज गए हैं और चाय इतनी अच्छी है तो खाना भी मुझे लगता है अच्छा ही होगा। आगे जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो यहाँ पे देखा मैंने मेनू में, भाई ने, इनके रूम है, सिंगल 300 का है, डबल 500 का है। देखते हैं और करते हैं थोड़ा विश्राम। ये देखो इनका कितना बढ़िया बना रखा है यार। ये बुखारी लगी है, ओ बिल्ली भी रखी है एक। और बाहर आप देख ही सकते हैं, ओ एक और बिल्ली, वाओ। और इधर ऊपर की तरफ पूरा का पूरा यार कितना शानदार लकड़ का इन्होंने बना रखा है। सारे कमरे भी लकड़ के हैं। ओह दिस वे, ओके। ये तो परफेक्ट रूम है।
Yeah, it is okay, fine. And how much for this? 300, yes. 300, fine. Fine, yeah. Okay. And network comes in the room? Yes, yes. Okay. Yeah. Thank you. And where is the bathroom? Bathroom is there. There. Yeah. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay, नमस्ते. Okay, namaste. चलो भाई ने एक लॉक भी दिया है और डबल कमरा मिल गया अपने को 300 में और परफेक्ट लोकेशन। इधर ऊपर वाली साइड के पहाड़ दिख रहे हैं और इस तरफ का नज़ारा भी। सो दैट्स इट फ्रॉम डे 6 वैसे तो कल था पर ट्रैकिंग के लिए 6 ही आज का था और सीरीज़ की वो कंटिन्यूटी में भी थोड़ा इजी रहेगा इसलिए मैं इसको 6 बोल रहा हूँ। जून बेसी से चला और बड़ा आराम से मस्ती में चलते चलते वहाँ एक जगह चाय पी, वहाँ पर भी वो 1-2 लोग मिले और इजी डे था, नॉट अ वेरी टफ हाइक। और मुंबई वाले भाई साहब भी मिले तो काफ़ी बढ़िया लगा और 3-3:30 बजे के आसपास मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बड़ी शांत सी छोटी सी बस्ती है, ये भी चारों तरफ जंगल। सुबह मौसम बढ़िया साफ़ होगा, होपफुली हमें कुछ बर्फ़ वाले पहाड़ देखने को मिलेंगे एवरेस्ट वाली साइड के। तो चलो वो तो देखेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में आगे के सफ़र पे। अब तक बहुत शानदार जा रहा है और कल से तो ये जो एरिया है खासकर जो पास क्रॉस किया था उस पास के बाद से लैंडस्केप भी काफ़ी चेंज हो गया है। सो होप कि आगे भी हमें और शानदार नज़ारे और इस तरीके के कंट्री साइड एरिया देखने को मिलेंगे।